Hello everyone, welcome to my English class. Today we are going to study a new poem, the very first poem of class 8 from the textbook Honeydew, and the topic of the poem is The Ant and the Cricket. It has been taken from Aesop's Fables. Children, do you know what a fable is? Fable, F-A-B-L-E. Fable is a story where the main characters are animals, and it usually gives us a moral. So here we are going to see a poem where animals are involved, and at the last this poem will give us a moral too. Now before we begin this poem, an introduction is given. Let us read this first. A fable is a story, often with animals as characters, that conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. Now here, the second line if we see, it says that this poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. That means this poem where two characters are involved. One is ant, another one is cricket. Here two characters are involved, and these two characters are going to give us an idea of far-reaching significance. That means they are going to give us a moral for our life, and which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Now here four-legged cricket everyone has seen. Now two-legged one, here two-legged one means human beings. The poet want to say that four-legged cricket can be compared to a two-legged one. That means human beings can be compared to the insects also. So surely you have seen a cricket that has two legs, and a exclamatory sign is given there, and it is asked to you in a surprising way whether you have seen a two-legged cricket. So two-legged cricket, here it is denoting the human beings, that we will find out when we read the poem. So let us see this poem stanza wise. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of May and summer, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? At last, by starvation and famine, made bold, all dripping with weight and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant, to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Now, let us see the first stanza of this poem. A silly young cricket. Children, cricket, you might have seen this insect, इसे हिंदी में झिंगुर कहते हैं. तो एक एंट है, चींटी है और एक क्रिकेट है. दो कैरेक्टर्स हैं इस पोएम में. अकस्टम्ड टू सिंग, उसे गाना गाना बहुत अच्छा लगता था और वो हमेशा गाने की प्रैक्टिस किया करता था. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, जितने भी दिन हुआ करते थे सनी मंथ्स, जब समर में धूप निकलती थी या स्प्रिंग सीज़न हुआ करता था, तो इस बहुत ही अच्छे खुशमिजाज मौसम में वो गाया करता था. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. और उसने कंप्लेन करना, शिकायत करना शुरू कर दिया कब? जब उसके घर में उसने देखा कि उसका कबर्ड खाली है. और ऐसा कब हुआ? विंटर वॉज कम, जब विंटर आया
तब उसका जो कबर्ड था वो एकदम खाली था, उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड। क्रम्ब मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, छोटा सा टुकड़ा खाने का। तो नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड मतलब एक छोटा सा टुकड़ा भी उसमें, एक छोटा सा दाना भी उस कबर्ड में नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। क्योंकि विंटर सीजन आ चुका था और सभी जगह स्नो थी, सारे पेड़, पत्तियाँ, फूल सब कुछ स्नो से ढका हुआ था, बर्फ़ से ढका हुआ था। वो किसी भी फूल को नहीं देख पा रहा था, किसी भी पत्ती को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि एवरीथिंग वॉज कवर्ड विथ स्नो। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तो क्रिकेट ये सब देखकर क्या कहता है, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। Now let us see the second stanza. At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. At last उसने जब वो भूख से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया और अकाल हो गया उसके घर में, फेमाइन मीन्स अकाल, जब एक भी दाना नहीं था और जब वो भूख से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई। पूरा वो भीगा हुआ है क्योंकि स्नो से बहुत ज़्यादा ड्रिपिंग हो रही है, तो वो भीग चुका है और सर्दी से काँप रहा है। ऑल ट्रम्बलिंग विथ कोल्ड अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, और उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की माइजरली एंट के पास जाने के लिए। माइजरली मीन्स कंजूस, तो जो कंजूस चींटी है उसके पास वो जाता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, ये देखने के लिए कि क्या वह जिंदा रह पाएगा, उसके लिए क्या चींटी मुझे कुछ देगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, क्या वो उसे शेल्टर दे पाएगी, रहने के लिए शरण देगी, और क्या उसे थोड़ा सा मुंह भर कुछ अनाज उसे देगी जिससे कि वो ज़िंदा रह सके। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रीपे इट टुमारो, और आज वो इस उधार को लेना चाहता है चींटी से और सोच रहा है कि ये जो भी वो मुझे देगी, उधार देगी, बोरो मीन्स उधार लेना, जो भी वो मुझे उधार देगी मैं उसे वापस अगले दिन या आने वाले समय में उसको लौटा दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर उस चींटी ने मुझे नहीं दिया खाने को तो मैं भूख से मर जाऊंगा। स्टारवेशन मतलब डाइंग ऑफ हंगर, भूख से मर जाना, दुख और स्टारवेशन से मर जाऊंगा। तो बच्चों ये तो था हमारे 2 स्टैंजास। अब हम देखेंगे कि जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और चींटी के पास पहुंचता है तो चींटी उससे क्या कहती है। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. अब यहाँ पर जब वो चींटी से बात कर रहा है तो चींटी उसको क्या कह रही है, I am your servant and friend, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, सर्वेंट भी हूँ, तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हूँ। बट वी एंड्स नेवर बोरो, लेकिन हम जो एंड्स होते हैं वो कभी भी उधार नहीं देते। वी एंड्स नेवर लैंड, ना ही हम उधार लेते हैं और ना उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, लेकिन क्रिकेट, माय डियर क्रिकेट, ये तो बताओ कि क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। When the weather was warm, quoth the cricket, not I. जब वेदर वार्म था क्या तुमने तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रखा। तो लास्ट स्टैंजा में क्रिकेट कहता है, लेट अस रीड दिस स्टैंजा फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू sang, सर, यू से, गो देन, says the ant, and dance the winter away. Thus ending he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Fox call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. Now in this last stanza, the cricket says, my heart was so light. The word light here means happy. His heart was very happy that I sang day and night.
क्रिकेट कह रहा है कि मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ करता था, मेरा मन इतना खुश हुआ करता था कि मैं रातों दिन बस गाता ही रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, गे मीन्स खुश, हैप्पी। तो फॉर ऑल नेचर, और मुझे सारा नेचर जो है बहुत ज़्यादा खुश नज़र आता था, बहुत सुंदर नज़र आता था, इसलिए मैं दिन रात गाता रहता था। यू सैंग सर, यू से आप। गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। तो एंट ने कहा कि तो फिर जाइए और जाकर विंटर में भी डांस करिए। दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, और उस एंट ने ज़ोर से जो विकेट था, विकेट यहाँ पर छोटा सा डोर जो होता है, स्मॉल डोर उसको कहते हैं, तो जो उसका स्मॉल डोर था उसको एकदम बंद कर दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और दरवाजे से बाहर उस लिटिल क्रिकेट को बाहर निकाल दिया। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। फॉक्स मीन्स पीपल। लोग कहते हैं कि ये एक फेबल है, ये एक स्टोरी है, एनिमल स्टोरी है जो हमें एक मॉरल देती है, और मैं कहता हूँ कि ये सही है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि ये एकदम सही है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ क्रिकेट्स जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके तो 4 legs होते हैं, एंड सम हैव 2। सम हैव 2 मीन्स किसी किसी के 2 पैर भी होते हैं। तो यहाँ पर 2 पैर मतलब ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को कंपेयर किया गया है एनिमल से, कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी इस क्रिकेट की तरह होते हैं, कि वो समय रहते अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढते नहीं हैं, वो वेट करते हैं कि जब सिचुएशन आएगी तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, पहले से उसकी कोई तैयारी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस पोएम में हमें एक मैसेज दिया गया है, एक मोरल दिया गया है कि हमें फ्यूचर के लिए हार्डवर्क करना चाहिए, जिससे कि हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो। हम अगर पहले से तैयारी रखेंगे अपने फ्यूचर की तो हमें आगे जाके परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो हमें किसी भी चीज़ के लिए फ्यूचर में हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म में हमें हमारी लाइफ इजी हो, सिंपल हो, हमें ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, इसके लिए अभी हमें क्या करना चाहिए। सो दिस इज़ अ मॉरल गिविंग poem also. So children, read this poem once again, understand it, and write it in the notebook also. Also write the difficult words of this poem in the notebook. Thanks for watching.